Assalamu alaikum dear students, welcome to the 25th lecture of Logistics Management. In that slide, the first slide that we saw, there was a triangle, and in that triangle there was customer services, transport decisions, inventory decisions, location decisions. We have extensively discussed all the topics. We have basically covered few chapters from customer services, few chapters from transport decisions, and few chapters from location. We have discussed some methodologies, techniques, as well as certain theoretical concepts. All of these were very much linked with each other. When I discuss customer services, I have to discuss inventories and transport and location. When I discuss location, I have to discuss inventories and transport, and vice versa. And this time, in these last lectures that we are going through, we are discussing inventories basically. And basically in inventories, why inventories are important. In the last lecture we discussed what are inventories basically. Then after discussing what are inventories, we were covering topics like what inventories, like how inventories can be, what are the reasons for having inventories and what are the advantages, what are the things which support like keeping inventories. We were discussing that, as well as we were discussing the concepts about forecasting. In the last lecture, that was part of it, and from forecasting we jumped to inventories. In forecasting we discussed specifically the areas where forecasting, the methodologies and the techniques that we can use when the techniques of forecasting are not appropriate. I mean by forecasting saying the regular techniques of quantitative forecast or qualitative forecast are not valid. Specifically we also discussed the concept of lumpy demand, where there was collaborative sort of technique that might be used for forecasting. And then specifically we discussed that if regular forecasting techniques are not appropriate or not applicable in a given scenario, then what we can do. Basically we can talk to the customers, we can talk to other channel members, we also need to be careful while applying. If forecasting, we apply forecasting, we need to be careful with it, because we need to have in mind that there might be larger errors in case of this specific case. Then we can also delay the supply response until actually the demand actually originates or it becomes clear. We can delay that. That is the concept of postponement basically that we discussed in the last lecture as well. Then we can shift demand to other periods where we know that for better supply response, because we would know that this much the demand would be. Then we can develop a quick and flexible supply system. I gave you example of two broad cases basically. I guess I remember that. One was a case like fast moving consumer goods. The demand for these goods can be very much predicted. It can be forecasted very conveniently based on the historic sales data. But when we move on towards certain goods which are not demanded in you can say that consistent manner. For example, a specific book might be demanded from Amazon.com not on regular basis, or some gift item or something like that. So in those cases, what Amazon.com or entities like this would do, they would develop a quick response system. As soon as the good is ordered, it is to be supplied. But on the other case, like fast moving consumer good case, all the consumer goods that are regularly demanded, they actually replenish the inventories. They replenish the stocking points, and they replenish the shelves in the shops of the retailers. That is how they manage it. So the cases are different, and this is the list of things that we basically discussed in the previous scenario that I was repeating, like managing highly uncertain demand. The first method, the first scenario that you can do is that you can delay the forecasting as long as possible. The second thing would be to prioritize the supply, because a single firm might have multiple types of products. If there are multiple types of products, that would mean not all products demand in the market would be similar. So if the demand would not be similar, that would simply mean that they can prioritize its supply. The product that is very regularly demanded, it can be of high priority for the firm, and the product whose demand is not that much predictable might be a low priority in terms of supply basically. Then there is principle of postponement, which I just highlighted again.
principle of postponement is associated with the concept that you delay the supply or delay committing to the final product. I gave you example of this, that when you actually place some order for something that is specifically custom made or something like that, then in that case actually usually what they do is that they delay the supply until they have some sort of a surety that you are going to buy that product. In certain cases that can just be a commitment by the customer that okay, I would buy that product, and then they can start producing it. So basically the principle of postponement, delay committing to final product form until an order is received. Final order is received, you do not convert the product into the final product. Then there is a flexible supply system. Only if the supply system is flexible, then it can respond quickly. And then in terms of this specific case of flexible supply system, alter capacity and output rates through subcontracting, computer technology, multi-purpose processes. These all can be utilized, and they were discussed in detail in the last lecture. I'm just going through what we discussed in the last lecture so that to give you a glimpse, and then we can move forward from it. Then the most important slide, the logics of having inventory, the justifications that why firms keep inventories. And just like in the last slide we saw that the things are linked with each other, the postponement and quick supply and for example flexible supplies, all they are linked with each other. Similar would be the case for in this case. They might be linked with each other, and they might also be linked, as I said in the start of this lecture, that inside that triangle, inside that box, they might be linked with them also, because the first point is that why firms should keep inventories. That would be to improve customer services, provide immediacy in product availability. So you see that is directly linked to the location thing, directly linked to transportation thing, and directly linked to customer service thing, or I guess most immediate connection with the customer service level that you have defined. So once you have defined a higher customer service level, that would simply mean that whenever a customer demands that product should be available. So in this case, improve customer service, and that is one of the reasons why inventories are kept. Once the product is in demand, और अगर customer एक market में जाता है उस product को purchase करने के लिए, और as soon as he wants to purchase that product and that product is not available on the shelf, wouldn't that customer request for a substitute in case of certain goods, or in case of, like, for example, specifically fast moving consumer goods, FMCGs? So in that case, inventories are those things which can be immediately tapped to fulfill that customer's demand. Then again, encourage production, purchase and transportation economies. The concept of full truckload was basically is actually associated with the transportation economy, because when you ship a full truckload rather than less than a truckload, the cost of shipment is less. Per unit cost of shipment is actually less. So that is how the transportation economies of scale are established when you are replenishing inventories and when you keep inventories. Then because you already have a product over there, you are not worried that customers won't be able to get that product when they need it. So you do not send smaller shipments, you send a large shipment at one step, at the initial step. You don't wait for, you don't have to rush to fill up those inventories. They are already available in the market, in the warehouses. Then purchase economies. Because when you keep inventories, your production process, let's turn to production economies, because production economies are basically dependent on the size of the production run. Because it is too costly कि अगर आप छोटे-छोटे production runs करेंगे तो it would be costly. So there is an optimal level of one single production run. अगर आप एक product बना रहे हैं उस पूरे production system को switch करते हैं किसी और product की तरफ, that has its own cost. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक production run move कर रहे हैं, that would automatically mean कि उसकी एक optimal length होगी. तो जब आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है और आपके पास वरीड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पैंटीन भी बना रहे हैं, हेड एंड शोल्डर्स भी बना रहे हैं, अगर पैंटीन मार्केट में मौजूद है तो आपको डर नहीं है कि वो एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट नहीं मौजूद है, वो इन्वेंट्री भी मौजूद है. जब फर्म्स या फॉर एग्जांपल जो रिटेलर जब इमीडिएटली उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो अवेलेबल होगा उनको देने के लिए. दैट वुड सिंपली मीन कि अपना प्रोडक्शन रन अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, हम उसको स्केड्यूल कर सकते हैं ताकि उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ना हो. इसी तरीके से आप लोगों की जो परचेजिंग है उसकी इकोनॉमीज, बिकॉज
आप क्योंकि इन्वेंट्रीज ही मैनेज कर रहे हैं, एक आप फॉर एग्जांपल इसकी रॉ मटेरियल साइड है, एक इसकी फिनिश गुड साइड है, क्योंकि फिनिश गुड से आप इन्वेंट्रीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने लार्जर इन्वेंट्रीज, यू हैव केप्ट लार्जर इन्वेंट्रीज, दैट वुड मीन कि आप लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, दैट वुड बी चीपर, बल्क में चीज लेना सस्ता पड़ता है। सिमिलरली आप रॉ मटेरियल की जो अपनी इन्वेंट्रीज है वो भी आप मेंटेन कर रहे हैं, अगेन द सेम थिंग कि आपको बल्क में परचेज करना सस्ता पड़ता है। देन एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट प्राइस चेंजेस, अगेन स्पेसिफिकली फ्रॉम रॉ मटेरियल साइड, कि आप उस टाइम पे वो चीज़ परचेज कर लेते हैं जब प्राइस सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है, जब प्राइस सबसे कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि बहुत सारी फर्म्स कॉटन, जब कॉटन की प्राइस नीचे जाएंगी तो परचेज करके रख लेंगी, मे बी प्रोडक्शन उन्होंने लेटर ऑन करनी है, मे बी नेक्स्ट ईयर करनी है, लेकिन उसको परचेज कर लेके, इस तरह ऑयल हो गया, डिफरेंट सारी रॉ मटेरियल जो हो गए जो एक्सपेंसिव होते हैं, जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, तो उनको फर्म जब उनकी प्राइसेस फेवरेबल हो जाती हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी में परचेज करके रख लेते हैं। देन प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज इन डिमांड, कि अगर प्रोडक्ट की फ्लक्चुएशंस डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा है तो ये फिर एज अ बफर बन जाता है उसके अगेंस्ट, कि अगर फॉर एग्जांपल डिमांड की फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट बफर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अचानक टी शर्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, या ड्यू टू सर्टन रीज़न कार बैटरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। अगर तो इन्वेंट्रीज हैं, इफ़ यू आर मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज, दैट वुड मीन कि आप उस डिमांड को मैनेज कर सकते हैं, एंड एट साइमल्टेनियसली यू वुड इन्फॉर्म द प्रोडक्शन फैसिलिटी की जल्दी से और बना दो, बिकॉज उनकी डिमांड अचानक इंक्रीज़ कर गई है ऑन फ्रॉम डिमांड इंक्रीज परस्पेक्टिव। अगर किसी वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज कर जाती है तो इन्वेंट्रीज अगर आप रखते हैं तो दैट वुड सिंपली मीन कि आपकी इन्वेंट्रीज पाइल अप हो जाएंगी, नथिंग एल्स। यू आर नॉट वरीड अबाउट क्या वो प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट को मैं किधर करूं, आप इन्वेंट्रीज में उसको जाके रख देंगे, वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर देंगे। देन देयर इज एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट कंटीजेंसी, सिमिलर थिंग, जैसे प्राइस के अगेंस्ट वो हेज कर रहा था, या अनसर्टेनिटीज इन डिमांड के अगेंस्ट हेज कर रहा था। सिमिलर थिंग कि अगर कंटीजेंसी आपके स्ट्राइक्स, फायर एंड डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन की सप्लाई, वर्कर्स की ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक हो गई, रोड्स ब्लॉक हो गई, कोई पोलिटिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई फॉर एग्जांपल आपके कह सकते हैं वर्कर्स की, या कोई रोड्स ब्लॉक होंगे, एनीथिंग रिजल्टेड इनटू डिसरप्शन इन सप्लाई। तो जब आपकी सप्लाई डिस्टर्ब भी हो जाती है, इफ़ यू आर हैविंग इन्वेंट्रीज, दैट वुड मीन कि आप इन्वेंट्रीज को रिप्लेनिश कर सकते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी से अब मैंने ये वाली स्लाइड डिटेल में थोड़ी इस वजह से रिपीट की है कि इससे अगले उसी के ऑपोजिट आ जाते हैं, दोज आर्ग्यूमेंट, दोज लॉजिक्स जो इन्वेंट्रीज के अगेंस्ट हैं। सबसे जो सबसे प्राइम लॉजिक है, जो सबसे प्राइम कॉन्सेप्ट दिया जाता है या इशू रेज किया जाता है, वो कि कैपिटल कंज्यूम करती हैं। ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ऑफ कीपिंग इन्वेंट्रीज, हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज को भी डिस्कस किया, जिसके वो दैट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री को हैंडल करने की, मेंटेन करने की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। तो वो पहला पॉइंट ये, दे कंज्यूम कैपिटल रिसोर्सेज दैट माइट बी पुट टू बेटर यूज एल्सवेयर इन द फॉर्म। That is a possibility, क्योंकि whenever you utilize any type of resources in either in any economy or for any business entity, उसकी opportunity cost होती है। आप अपने पैसे इवन के एज एन इंडिविजुअल कहीं भी लगाते हैं तो उन पैसों की opportunity cost है। there are other uses for that money as well। जैसे आजकल कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेट्रो बस बनी है तो उसकी जगह हॉस्पिटल क्यों नहीं बने, डैम क्यों नहीं बने, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं इंप्रूव हुई, स्कूल्स क्यों नहीं बने। दीज आर द इश्यूज। ये सारे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं जिस पहले पॉइंट ने मैंशनड है, कि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो एक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, रिसोर्सेज की कहीं और भी यूटिलाइजेशन थी। गवर्नमेंट के केस में आप लोगों का प्लानिंग कमीशन होता है एक्चुअली, जो हर प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। वो ये देखता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, उनको मॉनेटरी वैल्यू देख के वो देखता है कि दैट प्रोजेक्ट इज़ वायबल और नॉट। तो इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ही, खैर वो एग्जांपल कहाँ से कहाँ ले गया मैं, कमिंग डाउन, तो जो आपकी कैपिटल रिसोर्सेज इन्वेंट्रीज में लग रही हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू, आपने वेयर हाउस परचेज किया हुआ है, रेंट किया हुआ है, बाय किया हुआ है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की हुई है, वट एवर द सिचुएशन इज, फिर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आपने ऑलरेडी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया। जब एक प्रोडक्ट बना देते हैं तो उस पैसे की रिकवरी तब तक नहीं होती अनलेस कि वो प्रोडक्ट जाके सेल हो जाती है। वो आपके, आप समझे कि आपके क्या कहते हैं उसको, कमिटेड वो होता है अमाउंट जो लग गई,
वो कमिट होगी अमाउंट। अब जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी वो पैसे आपके पास वापस नहीं आने, उसमें गैप थोड़ा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर वो पिछले जिस सिनेरियो से हम जस्टिफाई कर रहे थे, अगर उसी किस्म की चीज़ें हो जाती हैं और वो फॉर एग्जांपल डिमांड अचानक रिड्यूस कर जाती है और इस तरह का कोई सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट आपके पास एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं और आपका फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी रिड्यूस होगी क्योंकि आपने अब प्रोडक्ट बना के रख दी है। फर्म्स की अक्सर एक बहुत बड़ा इशू उनकी लिक्विडिटी होती है, हाउ मच मनी दैट दे हैव, जो लिक्विड कैश होती है, तो वो लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाती है फर्म के अपने लिए, क्योंकि अब उसके पास वो इन्वेंट्रीज बनी हुई पड़ी हुई हैं। देन दे टू ऑफन मास्क क्वालिटी प्रॉब्लम्स दैट वुड मोर इमीडिएटली बी सॉल्व विदाउट देयर प्रेजेंस। इस पॉइंट के अंदर इन्वेंट्री का एक होने का मतलब एक आप कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट सॉर्ट ऑफ बताया गया, दैट इज कि वेन एवर यू बाय अ प्रोडक्ट और व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट देयर इज एन इशू विद दैट प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट आप वापस करते हैं और वो प्रोडक्ट आपको फर्म रिप्लेस कर देती है अगर उसके पास इन्वेंट्रीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मिल्क पैक का कार्टन उठाते हैं, आप देखते हैं इसकी एक्सपायरी डेट है, ये करीब पहुंची हुई, एक्सपायर हो चुका है, आप उसको वापस करेंगे और वो इमीडिएटली आपको दूसरा ला देगा, राइट। और इसी तरह जो रिटेलर है वो अपने सप्लायर को वापस करेगा, वो अपने आगे सप्लायर को वापस करेगा, वो जो आपका एक्सपायर्ड मिल्क पैक का पैकेट बनेगा वो घूमता घूमता पीछे चला जाएगा और वापस फर्म तक पहुंच जाएगा और जो एक नया पैकेट है वो रिप्लेस कर देगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एक कैमरा परचेज करते हैं, उसके अंदर कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ जाता है तो वो भी इन्वेंट्री से रिप्लेस कर दिया जाएगा आपको। तो जब मास्क का मतलब है उसको कवर अप करते हैं, तो जो फर्म की जो प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं तो जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज हैं उसको कवर अप कर देती हैं, राइट। अगर वो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज ना हो तो इसका मतलब यह है कि वो दैट वुड हैव बीन अ बिग इशू। अगर एक प्रोडक्ट या एक आइटम के अंदर आप कुछ माउस परचेज करते हैं, उसमें से 2 माउस खराब निकल आते हैं, तो वो दैट वुड हाईलाइट के फर्म इशू फील करेगी कि मैंने इसको 10 माउस या 5 माउस दिए थे, उसमें से 2 खराब निकल आए, दैट वुड बी अ बिग इशू। क्योंकि अब वो अगर फ्लश एज्यूम की इन्वेंट्रीज नहीं थी और वो सारा प्रोसेस भी जस्ट इन टाइम पे चल रहा है और सेकेंडली वो मेड टू ऑर्डर है, अब आप वो माउस बनाएंगे तो इसके लिए उनको पता चलेगा जाके, दे वुड रियलाइज कि यार ये 2 गलत बन गए, दैट इज अ वेरी 2 ऑफ द माउसेस हैव टेक्निकल फॉल्ट, सो दैट इज लाइक रियली सीरियस। लेकिन जो इन्वेंट्रीज हैं तो वापस आ जाएंगे, इसका मतलब है कि दे ऑफन मास्क क्वालिटी प्रॉब्लम्स दैट वुड मोर इमीडिएटली बी सॉल्व विदाउट देयर प्रेजेंस। अगर इन्वेंट्री ना होती तो वो ज्यादा डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड क्वालिटी प्रॉब्लम को ऐसा उसकी कॉज की तरफ जाते हैं रादर देन प्रोडक्ट रिप्लेस करे कस्टमर को चुप करा दिया। तो फर्म के अपने पर्सपेक्टिव में, नॉट कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, जो उसने बता रहे ना दैट दे माइट इमीडिएटली बी सॉल्व विदाउट देयर प्रोसेस, वो कस्टमर को तो दोनों तरीकों से आप सेटिस्फाई करना ही है आपने, इन्वेंट्री है कि नहीं है। अगर इन्वेंट्री है तो कस्टमर जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगी उसको। लेकिन अगर इन्वेंट्रीज नहीं बनाते तो प्रोडक्ट वापस जाएगी मैन्युफैक्चरिंग में, उसका एरर रिमूव किया जाएगा या दूसरी प्रोडक्ट उसके अंदर बना के दोबारा सप्लाई की जाएगी, राइट। सो द पॉइंट इज कि ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, फर्म के अपने पर्सपेक्टिव से, दैट वो अब एक चीज़ जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और प्रॉब्लम उनको बार बार नहीं फेस करना पड़ा तो इतना सीरियसली नहीं लेंगे उसको। तो इस वजह से जो फर्म की प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम्स है तो ये इसको कवर अप कर देती है इन्वेंट्रीज, क्योंकि वो रिप्लेनिश हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है बड़ी आसानी से। नॉट द प्रॉब्लम बट द प्रोडक्ट। They diverts management attention away from careful planning and control of the supply and distribution channels by promoting an insular attitude about channel management. यानी कि in this case the management would not take that आप कह सकते हैं careful planning and control of supply and distribution very seriously. उसके बारे में इतने सीरियस नहीं होते। रीज़न क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई की जा रही है, ऑलरेडी इन्वेंट्री से मौजूद है। जब प्रोडक्ट इन्वेंट्री से मौजूद है तो वो जो केयरफुल प्लानिंग वाला एस्पेक्ट है। अब मैं मतलब दीज आर सर्टन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इन्वेंट्रीज दैट आर बुकिश आर्ग्यूमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि दे हैव बीन इन अ टेक्स्ट बुक ऑल्सो। लेकिन पॉइंट यह है कि इसको अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो नो डाउट मैनेजिंग इन्वेंट्रीज ऑल्सो नीड्स वेरी केयरफुल प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो पहले डिस्कस किया था, अगर ओवर फोरकास्ट कर दिया तो भी आपको कॉस्ट पड़ती है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पड़ती है। अगर अंडर फोरकास्ट कर दिया तो आपको एक मेजर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है बार बार उस प्रोडक्ट को उधर पहुंचाने के लिए। सो दैट वुड मीन कि आप मतलब स्टिल दिस पॉइंट इज वैलिड इन सर्टेन केसेस, लेकिन ये इतनी आसानी से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इस आर्गुमेंट को अगेंस्ट इन्वेंट्री जो दिया जाता है। क्योंकि इतना इवन के इन्वेंट्रीज अगर ये समझा जा रहा है कि जी वो इन्वेंट्रीज को वैसे ही भरी जा रहे हैं बगैर किसी प्लानिंग और आप कह सकते हैं केयरफुल एनालिसिस के,
सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो इन्वेंट्रीज भी मैनेज होती हैं बड़ी वेल प्लान्ड और एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर ही रखते हैं। कभी आपने देखा है कि फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एग्जांपल तो दे दी मिल्क पैक एक्सपायर होने की, बट हैव यू एवर सीन एन एक्सपायर्ड कार्टन ऑन अ शेल्फ? नहीं। और हमेशा डॉन ब्रेड जो खासतौर पर पेरिशेबल गुड्स हैं, ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आती, इतनी क्वांटिटी में नहीं आएंगी कि आज मैंने कभी एटलीस्ट, बहुत कम ऐसे होता है कि ख़त्म भी हो जाए, और बहुत कम ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल एक्सपायर्ड ही मिल जाए। इसका मतलब बड़ी केयरफुली मैनेज की जा रही है इन्वेंट्रीज स्टिल, बट स्टिल दिस इज इट इज़ आर पार्ट ऑफ आर थ्योरेटिकल, आप कह सकते हैं, एस्पेक्ट। तो इसको डिस्कस मैंने कर दिया यहाँ पे। तो लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ दैट स्ट्रांगली एन एस्पेक्ट अगेंस्ट एन आर्गूमेंट अगेंस्ट इन्वेंट्रीज। ऊपर वाले दोनों की तो है, खासतौर पर फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट वैलिड वन, कि वो कैपिटल रिसोर्सेज को वो कर लेती है, आपके बुक कर लेती है, रिजर्व कर लेती है, जो कहीं और भी यूज़ किए जा सकते थे। और सेकंड वन कि वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स को मास्क कर देती है अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं लास्ट पॉइंट के एस्पेक्ट से कि डेफिनेटली उस लेवल की प्लानिंग, और वो तो आपको नहीं चाहिए अनलेस जिस केस में आप बिल्कुल ही इन्वेंट्रीज नहीं मैनेज कर रहे। अगर फर्म डायरेक्टली प्रोड्यूस करके फॉर एग्जांपल मिल्क पैक वाले सप्लाई करते होते, तो फिर उस लेवल की विदाउट कीपिंग एनी वेयर हाउसिंग के दरमियान में किसी न किसी स्टेप पे वो ट्रक लोड उतार के और वो ना कर रहे होते मैनेज, तो दैट वुड मीन कि इन दैट केस आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा एक्सटेंसिव प्लानिंग होती। लेकिन फिर वो दैट उसमें एरर्स की भी ज़्यादा, अगर एक्सटेंसिव प्लानिंग भी होती तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज़ ही बहुत बढ़ जाती हैं। स्टिल दीज आर द 3 रीजन जो ब्रॉडली दिए जाते हैं विच आर अगेंस्ट द इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये वो इन्वेंट्रीज की टाइप की लिस्ट है सामने आपके पास। पाइपलाइन, स्पेकुलेटिव, रेगुलर, साइक्लिकल एंड सीजनल, सेफ्टी एंड ऑब्सोलीट एंड डेड स्टॉक। नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन ताकि हमें वो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पाइपलाइन इन्वेंट्रीज तो सिंपली वो हो गई जो रास्ते में, द इन्वेंट्रीज दैट आर इन ट्रांजिट, बन गई और अब आप भिजवा रहे हैं किसी जगह पे उसको, तो या वो इन्वेंट्री की तरफ भिजवाई जा रही हैं लेकिन वो इन्वेंट्री में काउंट हो जाती हैं, तो दैट दोज आर इन्वेंट्रीज इन ट्रांजिट, पाइपलाइन इन्वेंट्रीज वो कहलाती हैं। देन स्पेकुलेटिव इन्वेंट्रीज, गुड्स परचेज्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक खास टाइप का रॉ मटेरियल आप ज़्यादा परचेज करके अपने पास रख लेते हैं क्योंकि कल को प्राइसेस इंक्रीज करने वाली हैं, तो इनको स्पेकुलेट करना। जैसे स्पेकुलेटिव डिमांड होती है ना कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ एंटिसिपेट करके वो काम करते हैं। जैसे अगर हम एज्यूम करते हैं कि वो कीनीजियन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर एक स्पेकुलेटिव डिमांड एस्पेक्ट है कीनीजियन थ्योरी का। स्पेकुलेटिव डिमांड वो डिमांड होती है कि अब कल को बॉन्ड्स की प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हुए देखेंगे तो यू माइट परचेज सम बॉन्ड्स, डिक्रीज होते हुए देखेंगे तो आप डर लग जाएगा, अपने बॉन्ड सेल आउट करना शुरू कर देंगे आप। तो वो स्पेकुलेटिव डिमांड है, फ्यूचर के बारे में कोई स्पेकुलेट करके करते हैं। तो इसी तरह दिस काइंड ऑफ सिनेरियो आल्सो इज एप्लीकेबल इन इन्वेंट्रीज आल्सो, कि जब आप स्पेकुलेटिव इन्वेंट्रीज उस वक्त रखते हैं जब फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करने वाली हैं, तो आप पहले से मंगवा के अपने पास रख लेते हैं, स्टॉक में एक्स्ट्रा रख लेते हैं आप, क्या कल को ऑयल महंगा हो जाएगा तो एटलीस्ट मैं तो इसको यूज़ करूँ। जिस तरह हम लोग अगर ये तो इन्वेंट्रीज का एस्पेक्ट है, लेकिन जब पाकिस्तान में वो अनाउंसमेंट होती है कि जी पेट्रोल बढ़ने वाला है, प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, सारे लोग अपनी गाड़ी की टैंकियाँ फुल करवाने पहुँच जाते हैं, पेट्रोल पंप पर रश लग जाता है। और कई दफ़ा इवन के कई पेट्रोल पंप्स वाले भी टैंकर्स इमीडिएटली ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं अपने, ताकि उनके टैंक्स को आके फिल करके चले जाएं, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि कल को प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो दिस इज बेसिकली दीज आर स्पेकुलेटिव इन्वेंट्रीज, जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के लिए आप उसको रिजर्व करके रख लेते हैं। देन देयर आर रेगुलर, साइक्लिकल एंड सीजनल इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हेल्ड टू मीट नॉर्मल ऑपरेटिंग नीड्स, कि फर्म की डिमांड अगर रेगुलर है तो जितनी रेगुलर इन्वेंट्रीज रखते हैं, फर्म की डिमांड अगर साइक्लिकल है तो साइक्लिकल और सीजनल का डिफरेंस भी आप लोगों को मैंने बताया था। सीजनल आर वेरी, आप कह सकते हैं ख़ास पैटर्न होता है उनका, पीरियोडिक होती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दियों गर्मियों के सीज़न में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड होती हैं। तो इसी तरह अगर आप सीजनल इन्वेंट्रीज देखें जो फर्म्स फॉर एग्जांपल या जो रिटेलर्स फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं, आपके स्वेटर्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं गारमेंट्स की वो शॉप है, तो उसके अंदर जो उसकी वो इन्वेंट्रीज पाइल अप गर्मियों में आपकी गर्मियों की टी शर्ट्स की इन्वेंट्रीज मेंटेन करना शुरू कर देगा, सर्दियों की तरफ आएगा तो वो आपकी सर्दियों की ज़्यादा स्वेटर्स और जैकेट्स की इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करना शुरू कर देगा। सो दैट इज़ बेसिकली सीजनल इन्वेंट्रीज। इसी तरह साइक्लिकल इन्वेंट्रीज हो सकती है। मैंने साइकिलिंग का कल का आपको बताया था कि दैट इज़ नॉट दैट पीरियोडिक, वो ओवर द वैसे भी 2 years या लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर जो एक ओवरऑल वो चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, दैट इज़ साइक्लिकल। देन देयर आर सेफ्टी इन्वेंट्रीज, एक्स्ट्रा स्टॉक हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड एंड लीड टाइम अनसर्टेनिटीज।
डिमांड, अगर डिमांड के अंदर अनसर्टेनिटीज आने का चांस है तो आप कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज डेफिनेटली अपने पास मेंटेन करेंगे, दैट वुड बी सेफ्टी इन्वेंट्रीज। ये सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेटिव की तरफ आ जाता है, लेकिन स्पेकुलेटिव वुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, आप कह सकते हैं कि आपकी सप्लाई साइड जो है, उधर से आप जो परचेज करते हैं, जो आपके सप्लायर हैं उनसे जो आप परचेज करते हैं, जैसे कई रिटेलर जो हैं बड़े बड़े, दे वुड डेफिनेटली कीप स्पेकुलेटिव इन्वेंट्रीज की। एक प्रोडक्ट महंगी होने वाली है तो अभी काफ़ी सारी खरीद के रख लेते हैं। तो जो आपकी सेफ्टी इन्वेंट्रीज, एक्स्ट्रा स्टॉक हेल्ड इन एंटिसिपेशन, अब ये दूसरी साइड है कि आपने प्रोडक्ट सप्लाई करनी है डिमांड वाली साइड से, तो आपके दो इसमें पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक इंक्रीज कर जाती है, तो उसके लिए जो आप इन्वेंट्रीज रखते हैं दोज वुड बी एक्स्ट्रा स्टॉक एंड दैट वुड बी दोज वुड बी सेफ्टी इन्वेंट्रीज। एंड द सेकंड थिंग वुड बी लीड टाइम अनसर्टेनिटीज की, जो आपका ऑर्डर प्लेस होता है फॉर एग्जाम्पल, और आपका जो पूरा टाइम है कि जिसके अंदर आपने उस प्रोडक्ट को आखिर बन के सप्लाई करना है, उसके अंदर अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, बिकॉज ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, जिसकी वजह से मर्जी है। तो उसकी वजह से भी जब आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज बन के रखते हैं तो उन इन्वेंट्रीज को भी सेफ्टी इन्वेंट्रीज कहते हैं। जब हमने रीजंस फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज के अंदर इससे एसोसिएटेड एस्पेक्ट देखे हैं, कस्टमर सर्विसेज नीड मीट करने के लिए भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज रखी जाएंगी, देयर इज मल्टीपल रीजंस। तो फिर फुल ट्रक लोड वाला भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि क्योंकि आगे उन्होंने इन्वेंट्रीज रख दी हैं तो इसका ये मतलब है कि वो फुल ट्रक लोड भिजवा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं खत्म होने वाली। तो अगर वो लीड टाइम अनसर्टन है फॉर एग्जांपल कि कितने अरसे में डिलीवरी होती है आपके वेयर हाउस तक, सो दैट वुड मीन कि आपकी ये वो इन्वेंट्रीज जो आप मेंटेन करते हैं सिर्फ अपने अनसर्टन लीड टाइम और चेंजेस इन अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन डिमांड के लिए, दोज वुड बी सेफ्टी इन्वेंट्रीज, वो एक्स्ट्रा स्टॉक होगा। देन देयर आर ऑब्सोलीट और डेड स्टॉक इन्वेंट्रीज दैट आर ऑफ लिटिल और नो वैल्यू ड्यू टू बीइंग आउट ऑफ डेट, स्पॉइल्ड और डैमेज। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट्स बहुत स्पीड से चेंज होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक नोकिया का फ़ोन आज परचेज़ करके रख लेते हैं, HTC का, ये हुआवे का, और आप एक उसके रिटेलर और आप बहुत सारा परचेज़ करके रख लेते हैं, अपने पास स्टॉक के स्टॉक रख लेते हैं, लेकिन कल को वो मॉडल इतनी स्पीड से चेंज हो रहे होते हैं कि जब वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आउट ऑफ डेट हो जाएगी तो फिर तो आपके पास पड़ी रहेगी। तो वो फिर इस तरह की इन्वेंट्रीज में आ जाती है, ऑब्सोलीट या डेड स्टॉक के अंदर आ जाती है कि इससे निकलना कोई नहीं है। देयर आर स्ट्रेटजीज फॉर दिस ऑल्सो कि फर्म्स कैसे उसको मैनेज करते हैं, लेकिन उसमें ये याद रखें कि वो आउट ऑफ डेट रादर या स्पॉइल्ड प्रोडक्ट हो जाती है। जो प्रोडक्ट्स वैसे भी जो स्पॉइल्ड हो गई मतलब ख़राब हो गई, आउट ऑफ डेट मतलब आउट ऑफ डेट हो गया, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो एक्सपायर होने के करीब आ जाती है या आउट ऑफ डेट होने के करीब आ जाती है तो लोग उसको सेल लगा के सेल कर देते हैं। हम बात करेंगे उस सेल भी लगा ली, सब आपने कर लिया, अब वो प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब वो ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो गई है। तो ये इन तीनों केसेस के अंदर वो दोज आर टर्म्ड एज डेड स्टॉक या ऑब्सोलीट स्टॉक। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम इन्वेंट्रीज के केस में यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कि अभी हमने पाइपलाइन इन्वेंट्रीज डिस्कस की, जो ट्रांजिट में इन्वेंट्रीज होती हैं, स्पेकुलेटिव जो इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन प्राइसेस आप उससे फ़ायदा उठाने के लिए स्पेकुलेटिव होती हैं। स्पेकुलेटिव आर फॉर बेनिफिट बेसिकली, सेफ्टी उससे डिफरेंट है, सेफ्टी आप के नुकसान ना हो जाए इसकी फियर से रखते हैं। स्पेकुलेटिव आर टू इफ़ यू एक वो केन्स की बड़ी मज़े की स्टेटमेंट थी एसोसिएटेड, जो उसने अपनी बुक में बेसिकली उसके अंदर लिखी थी उस बुक के अंदर, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। वो स्टेटमेंट इस तरह की थी कुछ कि द एडवांटेज यू एक्सपेक्ट टू हैव फ्रॉम नोइंग बेटर देन द मार्केट, कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको मार्केट से लोगों से बेहतर पता है, उस वक्त जो आप एडवांटेज उठाते हैं वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह की। लेकिन स्टिल ये स्पेकुलेटिव इन्वेंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेकुलेटिव इन्वेंट्रीज वो होती हैं जो आउट ऑफ बेनिफिट उठाने के लिए कि प्राइसेस चढ़ने वाली है तभी खरीद लो, जब बाकी सारे महंगे खरीदेंगे तो यू वुड बी बेटर ऑफ देन देम। फिर इसी तरह रेगुलर साइक्लिकल और आपकी सीजनल इन्वेंट्रीज मैंने बताई थी कि सीजनल चेंजेस की वजह से या रेगुलर जो आप इन्वेंट्रीज रेगुलर डिमांड हमने देखी थी ना, डिमांड के पैटर्न्स देखे थे कि स्कैटर्ड डॉट्स थे और जिनके अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा था, या इन केस ऑफ साइकिल्स वो इस तरह के साइकिल्स बने हुए थे, उसके अंदर आप पीक्स एंड ट्रफ्स बने हुए थे। सो दैट वुड बी द केस जब साइक्लिकल या उनके हिसाब से, उन साइकिल्स के हिसाब से या नॉर्मल रेगुलर डिमांड के हिसाब से विद एन इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड जो आप इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे होते हैं उनको मीट करने के लिए, दोज वुड बी रेगुलर साइक्लिक एंड सीजनल इन्वेंट्रीज। फिर उससे जो स्पेकुलेटिव से डिफरेंट थोड़ा सा एस्पेक्ट के लिए जब एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हैं वो सेफ्टी इन्वेंट्रीज होती हैं। सेफ्टी इन्वेंट्रीज और दोज जो आप चेंजेस के आप कह सकते हैं कि इन केस डिमांड चेंज ना हो जाए। और लास्ट वन इज ऑब्सोलीट या डेड स्टॉक, ऐसी चीज़ें जो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो एक्सपायर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं कि दूज और ऑब्सोलीट या डेड इन्वेंट्रीज। ये सारी की सारी किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड हैं इनके साथ, दैट इज नेचर ऑफ डिमांड।
यानी कि परपेचुअल डिमांड कंटिन्यूज वेल इनटू द फोरसीबल फ्यूचर, बड़ी परपेचुअल तरीके से एक खास, आप कह सकते हैं रादर विद अ कंसिस्टेंट पैटर्न, वो एक खास डिमांड एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मतलब हम दोबारा नेचर ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी दैट? और हमने ये लास्ट टाइम कब डिस्कस किया था? ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे उसमें फोरकास्टिंग के केस में, ये आपका फोरकास्टिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। हम इसको डिस्कस करें इन्वेंट्री के हिसाब से, क्योंकि आपने फिर वो फोरकास्ट तो कर ही रहे हैं, आपने इन्वेंट्रीज भी ऐसे ही मेंटेन करनी है जिस टाइप की प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने परपेचुअल डिमांड डिस्कस की है। परपेचुअल डिमांड वो जो बड़ी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूज इन अ फोरसीबल फ्यूचर, कि मतलब अगले 6 महीने 7 महीने साल जो है वो इसी तरह की एक खास डिमांड एग्जिस्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑयल की डिमांड है, इट माइट चेंज विद द पॉपुलेशन एज वेल, बट द पॉइंट इज कि एक अगर फॉर एग्जांपल को फर्म एक्स्ट्रा मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं कर सकती या कर रही, तो उसकी जो एक फॉर एग्जांपल कुकिंग खास ब्रांड की कुकिंग ऑयल की डिमांड है वो मे बी विद अ ट्रेंड ओनली ही एग्जिस्ट करे, उसमें कोई साइक्लिकल सीजनल फ्लक्चुएशंस नहीं है, अदर देन रमजान टाइम जब कुकिंग ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। सो द पॉइंट इज कि इसके हिसाब से इन्वेंट्रीज मैनेज करना वुड बी रादर सिंपलर, कि आपका इधर सिस्टम डिफाइन हो गया, आपने इतना स्टॉक कीप करना है हर जगह पे फलाने वेयर हाउस में। ये याद रखें जब इन्वेंट्रीज की बात करें तो इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ सिंपल इशू, क्योंकि आपका एक वेयर हाउस नहीं है जहां आपने सब कुछ रखना। हम सारी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात नहीं कर रहे, उस प्रोडक्शन फैसिलिटी से मल्टीपल वेयर हाउसेज में कहाँ रखना है। यू रिमेंबर कि हमने वो डिमांड की फोरकास्टिंग डिस्कस की थी विद द एस्पेक्ट इट कैन बी स्पेशल, इट कैन बी टाइम ओरिएंटेड, यानी कि आपको कब वो डिमांड ओरिजिनेट होनी है वो एस्पेक्ट, दूसरा उसका स्पेशल एस्पेक्ट कि किस जगह पे वो डिमांड कब ओरिजिनेट होनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसी हिसाब से फिर आपने इन्वेंट्रीज भी ऑब्वियसली मेंटेन करनी है। देन देयर आर सीजनल डिमांड्स, अगेन सीजनल डिमांड का एस्पेक्ट हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। जैसे टी शर्ट्स की डिमांड सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में ज़्यादा होगी और सर्दियों में बहुत कम होगी। स्वेटर्स की डिमांड सर्दियों में ज़्यादा होगी, गर्मियों में कम होगी। देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट जो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से फ्लक्चुएट करते रहते हैं अपने सीजनल पैटर्न के हिसाब से, सर्दियों गर्मियों वगैरह के हिसाब से। तो जब ये सीजनल पैटर्न इवन के आपकी कह सकते हैं एयरलाइंस की डिमांड इसके हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, टूरिस्ट की फॉर एग्जांपल जो होटल्स की डिमांड होती है वो इसके हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। कुछ सीजन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मरी में होटल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है ड्यूरिंग द सीज़न, जिसको हम सीज़न बोलते हैं कि जी सीज़न आया हुआ है आजकल। सीज़न आया हुआ का मतलब ये कि आजकल डिमांड मैक्सिमम पे, गर्मियों में जो है वो ज़्यादा मरी जो है वो दैट इज़ लाइक मोर, उधर लोग ज़्यादा जाते हैं। इसी तरह जो आपके नारायण काहान वाली साइड है दैट इज़ फ्रॉम मार्च अप्रैल मई जून, यही 3-4 महीने होते हैं, बाकी बर्फ़ पड़ जाती है उधर बहुत ज़्यादा, लैंड स्लाइडिंग, बारिशें स्टार्ट होती हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, अदरवाइज बर्फ़ होती है, तो हम उसको बोलते हैं सीज़न आ जाता है। तो वो साइक्लिकल डिमांड है, वेरीज विद रेगुलर पीक्स एंड वैलीज थ्रू द ईयर, पीक्स एंड ट्रफ्स की बात कर रहे हैं, जैसे साइकिल वो जो बिजनेस साइकिल की तरह जो मूव करता हुआ जाता है, दोज आर सीजनल डिमांड। अब उसके हिसाब से आपने इन्वेंट्रीज भी ऐसे ही मैनेज करनी है, यानी कि आपकी जब फॉर एग्जांपल समर सीजन आता है तो यू नीड टू स्टॉक अप ऑन टी शर्ट्स बिकॉज दोज आर गोइंग टू बी डिमांडेड मोर। लेकिन आपने सर्दियों में टी शर्ट्स में स्टॉक अप नहीं करना, आपने सर्दियों में जो है वो स्वेटर्स के लिए स्टॉक्स मेंटेन करने हैं। तो दैट इज़ के वो सीजनल डिमांड के हिसाब से इन्वेंट्रीज होती हैं। फिर लंबी डिमांड हाईली वेरिएबल, रेगुलर डिमांड नॉट हाईली वेरिएबल। रेगुलर डिमांड को भी हमने डिस्कस किया और अदर विद अ कंसिस्टेंट पैटर्न। अब वो एक्चुअली हम सबको अलग अलग करके देख रहे हैं, अब हम उसने उसको साइड पे करके देखा है। हमने रेगुलर डिमांड डिस्कस की थी, फिर रेगुलर के अंदर ही हमने साइक्लिकल, उसके अंदर ट्रेंड डाला, साइक्लिकल डाला, और उसी के अंदर जो है हम लोगों ने बाद में सीजनल भी ऐड किया। वो सारा हमने उस तरह बनाया था। तो अब हम उसको सेपरेटली डिस्कस करें। लंपी डिमांड वो वाला केस था जहाँ पे मीन इज़ लेस दैन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा लंपी डिमांड है, डिफरेंट पैटर्न्स पे होती है। तो उसमें कैसे आप इन्वेंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट आज ज़्यादा डिमांड की जा रही है, कल को एक भी नहीं मिलेगी, परसों फिर ज़्यादा की जाएगी या तरसों नहीं की जाएगी, तो वो बड़ी लंपी किस्म की डिमांड है। सो दैट वुड बी हाईली वेरिएबल, और इन्वेंट्री उसकी एक्यूरेटली आप फोरकास्ट करके नहीं रख सकते। फोरकास्टिंग टेक्निक्स हमने उसकी कोलैबोरेटिव डिफाइन की थी बाय द वे। देन देयर इज़ रेगुलर डिमांड विच इज़ नॉट हाईली वेरिएबल। रेगुलर डिमांड के ऊपर टाइम सीरीज टेक्निक्स भी आप लगा सकते हैं। आपकी जो हिस्टोरिक डाटा का एनालिसिस है वो इसके ऊपर, हिस्टोरिक डाटा एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं वो यहाँ पे आपकी रेगुलर डिमांड के अंदर यूज़ की जा सकती हैं। एक्यूरेटली फोरकास्टिंग डिमांड इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
देखिए अब हम लोग एक चीज़ को डिस्कस करते हैं साथ दूसरे एस्पेक्ट्स। अभी हम वे डिस्कसिंग इन्वेंट्रीज, लेकिन उनका डायरेक्ट ताल्लुक फोरकास्टिंग के साथ है, जो हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। उस वक्त आप लोग कहते हैं कि फोरकास्टिंग क्यों पढ़ा रहा है हमें, ये शायद कहते हो, शायद आप लोगों को पहले से पता हो। इवन देयर माइट बी, मतलब डेफिनेटली इनको पहले से सारी चीज़ें आती हैं। चलें, टर्मिनेटिंग डिमांड, डिमांड गोज टू जीरो इन फोरसीबल फ्यूचर, कि ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड खत्म होने वाली है, वी नो दैट। अब नो डाउट नोकिया 3310 इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोन्स इन इट्स टाइम एंड आफ्टर दैट अभी भी लोग उसके एग्जांपल्स देते हैं। फेसबुक पे छोटी छोटी तस्वीरें भी आती रहती हैं उसकी मुख्तलिफ टाइप्स की। आजकल बड़े नाजुक से फ़ोन आ गए, बट द पॉइंट इज़, मैं वो खैर फ़ोन्स को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट जिसकी फोरसीबल फ्यूचर की, फोरसीबल वुड मीन कि जिसको आप देख सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट, जो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि इतने टाइम पीरियड में क्या होने वाला है, दैट वुड बी फॉर एग्जांपल जीरो, कि प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली, अपनी लाइफ साइकिल के डिक्लाइन की तरफ आ चुकी है और ये जीरो की तरफ जा रही है। दैट वुड मीन कि ऐसे प्रोडक्ट की फिर इन्वेंट्री कैसे आप मैनेज करेंगे, वट हाउ वुड यू डील दैट। Then derived demand, demand is determined from the demand of another item of which it is a part। हमने इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जांपल यहाँ पे बड़े ख़ास तौर पे ली थी, जैसे गाड़ियों के अंदर जो कार्बोरेटर लगता है वो शायद कोई और बनाता हो, या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं whoever would make that, उसकी डिमांड डिराइव्ड होगी कार्बोरेटर की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गाड़ियों की जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ डिमांड की जाएंगी उतने ही कार्बोरेटर, मोर और लेस उतने ही कार्बोरेटर, क्योंकि अब उसकी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड है और उसने दूसरे मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करनी है। जब उसने दूसरे मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करनी है, दैट वुड सिंपली मीन कि जितनी प्रोडक्ट्स उसकी ऑर्डर की जाएंगी इतनी ही इसकी ऑर्डर की जाएंगी। डिराइव डिमांड को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, राइट। तो डिराइव डिमांड में आप इन्वेंट्रीज कैसे मैनेज करेंगे, ये भी हमने वैसे स्लाइटली उस दिन डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पार्ट बनाते हैं, आप कह लें कि आप स्क्रीन्स बनाते हैं, जो कैमरास के ऊपर स्क्रीन लगती है, अब आप उसके साइड पे वो व्यू देखने के लिए आप वो स्क्रीन्स बनाते हैं। अब आपके पास आप पैनासोनिक के सप्लायर हैं, पैनासोनिक के बहुत सारे कैमरास एग्जिस्ट करते हैं, आपने उसके वो छोटी छोटी स्क्रीन्स बनानी है। डेफिनेटली उस स्क्रीन्स के लिए आपने रॉ मटेरियल भी स्टॉक अप करना है। उसमें से कुछ सर्टन रॉ मटेरियल ऐसा है, जैसे उसकी प्लास्टिक की बॉडी फॉर एग्जांपल, एज्यूमिंग कि वो पैनासोनिक के ऊपर जितने मॉडल्स हैं उसके ऊपर जो स्क्रीन लगती है, जो वो आपको देखने के लिए कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड साइज फॉर ऑल द कैमरास। तो फिर तो केस डिफरेंट है, फिर तो वो उसके हिसाब से जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी इन्वेंट्रीज मेंटेन कर लेगा, और स्पेयर पार्ट्स रादर रॉ मटेरियल जो उसका बनाने का, और उसके बाद जब उसको इकट्ठा ऑर्डर प्लेस होगा इकट्ठा करेगा, असेंबल करके दे देगा, या पहले से चेक कर लेगा। जब हमने वो डिस्कस किया था कि इनवॉइसेस वगैरह जाके देखी जा सकती हैं कि प्रोडक्ट हमें इसको कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें कितने ऑर्डर प्लेस होने वाले हैं, हमने कितने बनाने हैं। उसको 100 का ऑर्डर प्लेस हुए तो हमने उसको 100 स्क्रीनें देनी है। अब जो इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, ये तो मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल उसके 10 कैमराज हैं, उसमें से जो पहले 5 हैं उनकी स्क्रीन 6 इंचेस है, दूसरे की स्क्रीन 8 इंचेस है। डिफरेंस है ना, और मे बी टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ डिफरेंस है, एक HD कैमरा और एक प्लेन कैमरा, वीडियो कैमरे की बात कर रहा हूँ। सो दैट वुड मीन कि उनके पार्ट्स के अंदर भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे पार्ट ज़रूर होंगे जो यूनानिमसली सब के अंदर लगते होंगे, लेकिन फिर कुछ डिफर होंगे। तो वो जो पार्ट जो यूनानिमसली सब के अंदर लग रहे हैं, सारे 7, 8, 10 कैमरा मॉडल्स के ऊपर, तो उसको तो वो स्टॉक अप कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब वो आगे उसको देने लगेगा तो ही वुड नीड, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे अब फॉर एग्जांपल कैमरा टाइप A, B, C के अंदर एक पार्ट एक जैसा लगता है, और उन दोनों के अंदर एक एक पार्ट ऐसा है जो स्पेस सिर्फ उनके लिए, तो वो तो तब ऑर्डर कर लिए जाएंगे जब आप डिमांड, एंटिसिपेटेड डिराइव डिमांड जो है वो पता कर लेंगे। उसके हिसाब से आप उन 3 कैमरास के वो 3 पार्ट्स मंगवा लेंगे। लेकिन जो उसका क्या कहते हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो सब के अंदर लगते हैं, तो वो तो आप पहले से भी स्टॉक अप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डिराइव डिमांड के केस में इन्वेंट्रीज मैनेज करना इज डिफरेंट। तो जो पूरी थीम है जो हमने इसमें देखी कि डिमांड इज द मेन थिंग, और डिमांड से एसोसिएटेड आगे डेफिनेटली उसके हिसाब से इन्वेंट्रीज मेंटेन की जाती हैं। सो बेसिकली द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, the type of the demand that it faces, based on that demand the forecasting technique would be dependent on the type of the demand, और फिर जो forecast आप करेंगे that is very important for managing inventories।
तो इसका मतलब है कि हमने जो शुरू में, क्योंकि एक सप्लाई चेन मैनेजर के लिए फोरकास्टिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने खाली ट्रांसपोर्ट मैनेज करनी है, उसने इन्वेंट्रीज भी मैनेज करनी है, तो दैट वुड मीन कि पूरे सप्लाई चेन के प्रोसेस के अंदर जो फोरकास्टिंग है उसकी एक स्ट्रॉन्ग वर्थ एग्जिस्ट करती है। तो फर्म्स के पास मोस्ट ऑफन उनके पास एग्जिस्ट करते हैं फोरकास्टिंग के लिए स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल वो फोरकास्टिंग सेल्स क्रिएट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट लेकिन एक खास लेवल की एक इमीडिएट फोरकास्ट आपके इसको सप्लाई चेन मैनेजर को भी चाहिए। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट भी उसको चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म भी चाहिए, कुछ खास प्रोडक्ट्स के लिए उसको चाहिए जो मे बी उस हिसाब से वो लोग ना करें, तो उसके लिए फिर वो अपनी मेथोडोलॉजीज, अपनी टेक्निक्स और खुद भी यूज कर सकता है उसको। तो द पॉइंट है कि इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए भी, अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए फोरकास्ट की एक्यूरेसी काफ़ी ज़रूरी है। देन जनरल इन्वेंट्री फिलोसफीज आ गई जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस आप कह सकते हैं कि ये अगले इन्वेंट्री से रिलेटेड जो लेक्चर है उसके अंदर मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये वाला, एटलीस्ट आई लाइक इट, आगे आपकी मर्जी है। देर आर तीन ये इन्वेंट्री की फिलोसफीज हैं और 2 इसके बाद हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं इसको कवर। हमारे पास टाइम भी कोई मेरे ख्याल में 20 मिनट रह गए हैं शायद। आई गेस दे आर सफिशिएंट। एक इन्वेंट्री की फिलोसफी है पुल इन्वेंट्री, ड्रॉज इन्वेंट्री इनटू द स्टॉकिंग लोकेशन। ईच स्टॉकिंग लोकेशन इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, मैक्सिमाइजेज लोकल कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज। इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस, खैर यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है एज सच। पुल इन्वेंट्रीज तब आप कंसिडर करते हैं जब प्रोडक्शन इकोनॉमीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पुल इन्वेंट्रीज किस बेस पे डिपेंडेंट होती हैं? वो वेयर हाउस टू प्रोडक्शन फैसिलिटी इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप वेयर हाउस के जो स्टॉकिंग लोकेशन है कि वो इन्वेंट्री अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो पुल कर रहा होता है। पुश वो होता है जिसमें जो पुश इन्वेंट्री अगली स्ट्रैटेजी, उसको भी एक दफा जल्दी दोनों को इकट्ठे देखेंगे तो आसानी से हमें समझ आ जाएगा। एलोकेट्स प्रोडक्शन टू स्टॉकिंग लोकेशंस बेस्ड ऑन ओवरऑल डिमांड, एनकरेजेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। वो पुश कर रहा है, जो आपकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो स्टॉकिंग लोकेशंस की तरफ पुश कर रहा है, उसमें प्रोडक्शन फैसिलिटी इज एट द अपर एंड। लेकिन जो पुल इन्वेंट्रीज हैं उसमें जो इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी है उसमें बेसिकली जो इन्वेंट्री है, जो वेयर हाउस का सेटअप है, दैट इज एट द अपर एंड, वो डिसाइड कर रहे हैं। तो वो जिस हिसाब से रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर प्लेस करेंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन होगी। दूसरे केस में प्रोडक्शन जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से स्टॉकिंग की जाएगी। वो प्रोड्यूस कर देंगे अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए, उसके हिसाब से वो एलोकेट करेंगे। तो जहां पे प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक मेजर सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है कि अगर आप उस स्केड्यूल को या उस प्रोडक्शन रन को छेड़ेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, तो आपने मास लेवल पे प्रोड्यूस करना ही करना है। तो फिर आप पुश इन्वेंट्रीज यूज करते हैं जिसमें एलोकेट्स प्रोडक्शन टू स्टॉकिंग लोकेशंस बेस्ड ऑन ओवरऑल डिमांड, कि ये 10% टोटल डिमांड का 20%, 30% उसी हिसाब से जितना प्रोड्यूस किया है उसका 10% इसको भेज दो, 20 उसको भेज दो, 30 उसको भेज दो, 40 उसको भेज दो, राइट। तो आप इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको कि वो टोटल डिमांड का जितना पार्ट उस हिसाब से भेज दो। आप अपनी प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल देख रहे होते हैं, प्रोडक्शन प्लांट की। एनकरेजेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एज इट इज, जैसे मैं बता रहा हूँ नीचे लिखा। उसका उससे डिफरेंट कंट्रास्टिंग एक एस्पेक्ट है पुल इन्वेंट्रीज। पुल इन्वेंट्रीज में ड्रॉ इन्वेंट्री इनटू द स्टॉकिंग लोकेशन, यानी कि स्टॉकिंग लोकेशन जो है वो खुद बताती है कि आप इसको रिप्लेनिश करना है, मुझे इतने बना दो, यानी कि वेयर हाउस उसमें डिसाइड कर रहा है। जो इन्वेंट्री लोकेशन है वो डिसाइड करेगी यहाँ पे कितनी आनी है, नॉट मोर देन दैट। ईच स्टॉकिंग लोकेशन इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, उसकी अपनी डिमांड सेपरेटली मैनेज हो रही है। उसका वो सेंट्रलाइज या टोटल डिमांड से उस तरीके से एस्पेक्ट नहीं आएगा। आप टोटल डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप परसेंटेज शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हर इन्वेंट्री को अलग देखा जा रहा है कि जी मैं 100 मांगता हूं तो मैं 100 ही मांगता हूं। मुझे अगर 100 फॉर एग्जाम्पल आपने बॉटल्स बना के देनी तो 100 ही बॉटल्स देनी है, आई डोंट कीप मोर देन दैट। ये वेयर हाउस वाला पहले से कहता फिर रहा है। देन मैक्सिमाइजेज लोकल कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब एक रीजन की जो इन्वेंट्रीज मैनेज हो रही हैं वो लोकली कंट्रोल की जा रही हैं। आप इस्लामाबाद रीजन की अपनी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद पिंडी रीजन, या मे बी दे कैन बी ब्रॉडर ऑब्वियसली, या वो बिल्कुल ही बहुत ही उसको नैरो डाउन कर सकते हैं, खाली एक खास एरिया के लिए आप बात कर सकते हैं। लेकिन रादर के इतने बड़े स्केल पे उससे बेहतर ये है कि
ऑन एवरेज एक रीजन की बात की जाती है कि इस रीजन की जो सेल्स है इन्वेंट्रीज है उनको इकट्ठे ही देखा जाता है। तो इन दैट केस कि आपके लोकल कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज के इन्वेंट्रीज अपने लेवल पे हर वेयर हाउस के हिसाब से मैनेज की जा रही है, दैट वुड बी पुल इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी। दोनों एक दूसरे से कंट्रास्टिंग है। देयर इज अ हाइब्रिड ऑल्सो कि दोनों का मिक्स के ये जितना चाहिए और वो कितना डिमांड प्रोड्यूस इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों के दरमियान का सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि मिक्सचर दोनों का, कि दोनों की मर्जी की जाए किसी तरीके से, दैट वुड बी अ हाइब्रिड इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी पुल और पुश के दरमियान। फिर हम आगे इसका एक इमेज भी देख लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। उससे पहले हम जस्ट इन टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट इन टाइम अटेम्प्ट्स टू सिंक्रोनाइज स्टॉक फ्लो सो एज टू जस्ट मीट डिमांड एज इट अकर्स, मिनिमाइजेस द नीड फॉर इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट हम पहले भी एक लेक्चर के अंदर टोयोटा के केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई गेस बुक के अंदर इसकी काफी सारी एग्जांपल्स इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का ये केस है कि जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या इंटरमीडिएट गुड या कुछ भी या रॉ मटेरियल जब वो प्रोडक्शन के लिए चाहिए वहां पे मौजूद हो, ताकि इन्वेंट्री कॉस्ट आप मिनिमाइज कर सकें रॉ मटेरियल की और उन सारी चीज़ों की। और आप बनाए भी, अगर दूसरी साइड पे देखें तो आप बनाए भी इतनी, आप फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री ज़्यादा मैनेज ना करें, जिसके हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से बन के निकलती जाए। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का ये कॉन्सेप्ट है। वो अगेन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री तभी मैनेज हो सकती है, हम पीछे से पहले भी देख रहे थे, फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन सिस्टम, रादर क्विक रिस्पॉन्स सप्लाई चेन, कि वो ऐसी सप्लाई चेन मैकेनिज्म है जो बड़ा क्विक रिस्पॉन्स वाला, ऑर्डर प्लेस हुआ प्रोड्यूस कर दिया। तो जस्ट इन टाइम के लिए क्विक रिस्पॉन्स और एक वेल स्केड्यूल मैनेज प्रोडक्शन सेटअप और ये सारा कुछ चाहिए। वो आप कह सकते हैं कि जैसे वो मैनेजमेंट फिलॉसफी की वो जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इन्वेंट्री था ना, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने ये कुछ लोगों ने जिन्होंने जस्ट इन टाइम बनाया उनकी बात सुन ली है। ये दोज सिस्टम्स जो इंतहाई वेल कंट्रोल्ड एंड मैनेज, जो ये आपका जो इन्वेंट्री का और ये वाला सेटअप है ना, दैट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड एंड मैनेज सेटअप। तो उसे मैनेजमेंट का प्लानिंग और कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। दैट इज वाई ओनली देन जस्ट इन टाइम कैन बी मैनेज्ड। इस प्रोसेस को मैनेज करना इज ऑब्वियसली वेरी, आप कह सकते हैं, इट नीड्स प्रिसीजन। फिर ये पुल एंड पुश के आप लोगों को मैंने बताया था कि स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा। आपके एक तरफ जो है वो वेयर आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो बड़ी सी फैक्ट्री बनी हुई है, प्लांट लिखा हुआ है उसके नीचे। उसके बाद आपके वेयर हाउसेज बने हैं, वेयर हाउस 1, 2 और 3। वेयर हाउसेज अपनी इन्वेंट्रीज यूटिलाइज कर लेते हैं, जैसी किसी प्रोडक्ट की डिमांड उन तक पहुंचती है उसके हिसाब से वो सप्लाई कर देते हैं। डेफिनेटली उनके स्टॉक्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और फिर वो उसको दोबारा रिप्लेनिश करवाते हैं। अब इस बेसिकली पुल और पुश डिफरेंशिएट करती हैं इस रिप्लेनिशमेंट के प्रोसेस को। अगर तो वेयर हाउस बताता है कि मुझे इतने चाहिए और उसको उसके हिसाब से सप्लाई किए जाते हैं, तो इन दैट केस इट वुड बी पुल इन्वेंट्री। जो ऊपर सबसे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वेयर हाउस खुद पुल कर रहा है, जो क्वांटिटी का एरो बता रहा है उस डायरेक्शन कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, Q1 चाहिए, मुझे Q2 चाहिए, मुझे Q3 चाहिए। आप उस हिसाब से रिक्वेस्टेड रिप्लेनिशमेंट क्वांटिटी बाय द वेयर हाउस, उसको नीचे भी लिखा हुआ है, दैट इज कि हम उस क्वांटिटी को नाम दे रहे हैं, हम रिप्लेनिशमेंट क्वांटिटीज वजह को Q1 बोला। तो जैसे डिमांड आई, डिमांड फोरकास्ट पहुंची, हमें इतनी क्वांटिटी दे दो। हर वेयर हाउस इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जा रहा है, लोकल आप कह सकते हैं मैनेजमेंट उसका की जा रही है, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह उसको देखा जा रहा है। ऊपर लिखा हुआ, अगर उसको स्टेटमेंट को पढ़े, रिप्लेनिश इन्वेंट्री विद ऑर्डर साइजेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच वेयर हाउस। आप टोटल उसको एज अ होल नहीं देख रहे, आप उसको हर वेयर हाउस की अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से देख रहे हैं। Q1 इसको चाहिए, Q2 इसको चाहिए, Q3 इसको चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q टोटल, और QT हम प्रोड्यूस कर देते हैं। दैट वुड बी द डिसीजन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब डिसीजन मेकिंग वेयर हाउस के हाथ में, उन्होंने फोरकास्ट किया, डिमांड फोरकास्ट आए कि इस वेयर हाउस में इतना चाहिए, वो डिमांड फोरकास्ट इधर पहुंचे, इन्होंने उसको प्रोड्यूस कर दिया और उनको सप्लाई कर दिया। दैट्स ऑल। दैट वुड बी पुल इन्वेंट्री की ये लोग पुल कर रहे हैं। पुश इन्वेंट्री वुड बी एग्जैक्टली आप कह सकते हैं प्लांट की साइड पे आ जाता है, यानी कि प्लांट एलोकेट सप्लाई टू ईच वेयर हाउस बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ ईच वेयर हाउस। पुश इन्वेंट्रीज उस केस में होती हैं जहां पे बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट करती हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द मेन फोकस, आप कह लें कि उस प्लांट के लिए प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगी, सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी, इन दोज केसेस पुल इन्वेंट्रीज यूज होती है। नॉर्मली रिटेलर्स के लेवल पे पुल इन्वेंट्रीज यूज की जाती है, वो लोग कंटिन्यूसली स्टॉक रिप्लेनिश की बात कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे पुश इन्वेंट्रीज, जहां प्रोडक्शन फैसिलिटी की आप लोग बात करते हैं, अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल या प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस वो प्रोड्यूस उतना ही प्रोडक्शन रन उनका उसी साइज का होगा।
अब वो क्या करेंगे कि वो जो A1, A2 और A3 तीन एरोज नजर आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन वेयर हाउसेस की फोरकास्ट के बेस पे उनको, यानी कि अगर आप तीनों फोरकास्ट को ऐड करें और टोटल फॉर एग्जांपल A3 आ जाता है आपके पास टोटल फोरकास्ट, तो अब आप उस AT के हिसाब से आप उनको A1, A2, A3 पकड़ा देते हैं। ये पुश इन्वेंट्रीज कहलाएंगी। इसमें आप वेयर हाउस की स्पेसिफिक नीड को नहीं देख रहे उस तरीके से कि मैं 100 रखना चाहता हूं, यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट। अगर उसने कहा जी हमारी फोरकास्ट 100 थी, तो आप उसे एक की फोरकास्ट 100 है, दूसरे की 200 है, दूसरे की 300 है, दैट इज अराउंड 600, लेकिन आपकी प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहती है आपने 900 बनानी है, तो जो उनका परसेंटेज का टोटल है उसके हिसाब से आप उनको सप्लाई कर देंगे। दोज वुड बी पुश इन्वेंटरीज, कि आप उनको यू वुड सप्लाई बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज शेयर। आप ऐसे जेनेरिकली इसको ऐसे कह लें, क्योंकि ऐसे प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट कॉस्ट एंड दे आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग रादर देन के इंडिविजुअल वेयर हाउस की मैनेजमेंट के हिसाब से। तो प्रोडक्शन फैसिलिटी पुश कर देगी इन्वेंट्रीज वहां पे अपने हिसाब से प्रोड्यूस करके, जो जिसका हिस्सा बनता है उसके हिसाब से दे देगा, राइट। तो ये पुश वर्सेस पुल इन्वेंट्री की बेसिकली फिलॉसफी जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी, उसकी ये आप कह सकते हैं डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन है। इनके दरमियान एक हाइब्रिड यूज होगा, माइट बी यूज, जिसमें दोनों कोलैबोरेट करके आपस में Q1 चाहिए, A1 सप्लाई करना है, समहाउ एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं नैरो बैंड के अंदर आपस में डिसीजन मेकिंग कि वो इंडिपेंडेंटली मैनेज भी हो जाए और प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कंसिडर की जाए, दोनों के एस्पेक्ट को देखें, कोलैबोरेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग। देन लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, बिकॉज वी आर गेटिंग आउट ऑफ टाइम, मैंने स्लाइड से एक रिवीजन भी करनी है, रादर अगले लेक्चर में मैं थोड़ा बेहतर बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, अभी मैं हल्की सी रिवीजन करके स्लाइड्स में से गुजर जाऊंगा। सप्लाई, क्योंकि हम आगे डेफिनेटली जब इससे आगे चलेंगे तो वो हमें ये कॉन्सेप्ट्स भी एसोसिएट करने पड़ेंगे। सप्लाई ड्रिवन, एक्सटेंसिव फोरकास्टिंग नीडेड, ऑल सप्लाई मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस, इन्वेंट्रीज आर कंट्रोल थ्रू डिमांड। बेसिकली जो सप्लाई और डिमांड का रिलेशनशिप है प्रोडक्ट्स का आपस में, अगर वो बड़ी आसानी से एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी आप सप्लाई कर सकें जितनी उस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी प्रिडिक्टेबल है, तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि दैट वुड बी परफेक्टली आइडियल सिनेरियो। लेकिन ऐसे नहीं होता अक्सर। आप जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर देते हैं कि स्वेटर्स का जब सीजन आता है, सर्दियां आती हैं, तो बहुत सारी स्वेटर जैकेट्स एक्सेस में सप्लाई हो जाएंगी, पॉसिबिलिटी है। आप एक्सटेंसिव फोरकास्टिंग नीडेड, राइट, वो इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि जब एक्सटेंसिव फोरकास्टिंग नीडेड होती है, बड़ा आपने करना है, लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल उसके अंदर एरर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ओवर सप्लाई हो सकता है। तो आप ये करते हैं कि रादर देन अंडर सप्लाइंग यू प्लान टू ओवर सप्लाई, आप एक्चुअली ओवर सप्लाई कर देते हैं। यानी कि आप ये नहीं देखते अंडर सप्लाई वुड मीन लॉस्ट कस्टमर, आप ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप अक्सर आजकल तो ये ट्रेंड नॉर्मल बन चुका है बिल्कुल, आप गारमेंट्स की शॉप्स में जहाँ सेल्स लगी हुई होती हैं, वो सेल्स क्यों लगी हुई होती हैं? वो सेल्स इसलिए लगी होती हैं कि जब वो टी शर्ट्स या स्वेटर्स बनाते हैं उस सीजन के लिए तो वो सप्लाई कर देते हैं, फिर वो एटलीस्ट ये चाहते हैं कि शॉर्ट ना हो जाए, थोड़ा एक्सेस में चला गया तो व्हाट दे डू इज वो प्राइसेस नीचे ला के उसको सेल आउट कर देते हैं इन्वेंट्रीज को, राइट। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉलोड। जो ये लिखा हुआ है ना, इन्वेंट्रीज आर कंट्रोल थ्रू डिमांड, तो आप प्राइसेस नीचे ला के डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, और जब उसकी डिमांड इंक्रीज होती है तो जो प्रोडक्ट है वो निकल जाती है, आपकी सेल आउट हो जाती है। इस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। तो देन देयर इज एग्रीगेट कंट्रोल। एग्रीगेट कंट्रोल इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स। आप लोगों को वो 80-20 प्रिंसिपल याद है? 20% ऑफ द प्रोडक्ट जनरेट्स 80% ऑफ द रेवेन्यूज। तो जब वो 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्ट्स अपने 20% प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड की जाती हैं बाकी 80% के मुकाबले में, तो इन्वेंट्रीज भी फिर इसी तरीके से मैनेज की जाती हैं। प्रोडक्ट की जब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बनाई थी A-B-C, ए प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड की जा रही थी, बी उससे कम और सी सबसे कम डिमांड की जा रही थी। तो इसका मतलब है जो आप आइटम्स को जब ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स लेवल बेस्ड ऑन 80-20 प्रिंसिपल, सिंपल ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वाली एक्सरसाइज। अलाउज डिफरेंट कंट्रोल पॉलिसी विद 3 और मोर ब्रॉड प्रोडक्ट्स ग्रुप, जैसे हमने A-B-C हमने क्लासिफाई किया था, प्रोडक्ट ग्रुप्स को बना दिए थे, उनकी सेल के हिसाब से कितनी क्वांटिटी उनकी सेल होती है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट करती हैं। तो फर्म्स की जो 20% रेवेन्यू है, 80% रेवेन्यू और 20% सेल्स से आ रहा है, इसका मतलब है वो 20% प्रोडक्ट जो है जो पूरी उसकी कैटलॉग की जो ज़रा सेल आउट होती है, तो उनको तो सबसे पहले एक कैटेगरी में डालो, तो उनकी इन्वेंट्री सही तरीके से मैनेज करो, बिकॉज वो अपने ग्रोथ स्टेज पे हैं या अपने मैच्योरिटी स्टेज पे हैं अभी। तो दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो B और C हैं, तो वो इधर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती ड्यू टू अदर रीजन, या माइट भी अपने लाइफ साइकिल की वजह से डिफरेंट उनकी डिमांड है। तो दैट वुड मीन कि उनकी इन्वेंट्रीज पॉलिसी भी उसी तरीके से मैनेज की जाए।
तो आप इन्वेंट्री पॉलिसी डिफाइन ही उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स कैटेगराइज कर लिए हैं। आई होप टूडेज लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग। अब हम थोड़ा सा रिवीजन की तरफ चले जाते हैं। लेट अस गो बैक एंड लुक एट दिस स्लाइड, द फर्स्ट वन, जो हमने आज के लेक्चर के हिसाब से डिस्कस की थी। इससे पहले हम लोगों ने एक और स्लाइड डिस्कस की थी रीजंस ऑफ इन्वेंट्रीज, लेकिन ये क्योंकि 2 दफ़ा रिपीट हो चुकी है तो आई वोंट डू दैट, आई वुड स्ट्रेट अवे गो टू रीजंस अगेंस्ट इन्वेंट्रीज। रीजंस अगेंस्ट इन्वेंट्री नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था कि वो कंज्यूम करते हैं कैपिटल बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैपिटल एलोकेट हो जाता है, इन्वेंट्रीज परचेज हो जाती हैं, और क्योंकि इन्वेंट्रीज आपकी प्रोड्यूस हो जाती हैं और बन के वेयर हाउसेज में पड़ी हैं, तो जब तक वो सेल आउट नहीं होंगी वो खास रेवेन्यू का पार्ट आपके पास वापस नहीं आएगा। दैट वुड मीन कि वो कैपिटल रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेती हैं और वो कैपिटल रिसोर्सेज कहीं और भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं एक फर्म के अंदर। देन दे टू ऑफन मास्क, मैं ऑलवेज की बात नहीं कर रही, टू ऑफन मास्क क्वालिटी प्रॉब्लम्स दैट वुड मोर इमीडिएटली बी सॉल्व विदाउट देयर प्रेजेंस। क्वालिटी प्रॉब्लम किस तरह के प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो इन्वेंट्रीज के अंदर इसे रिप्लेसमेंट और इस तरह की चीजें करके पूरे किए जा सकते हैं। कि आपका कैमरा खराब है, दें आपको दूसरा कैमरा दे देंगे, अनलेस कि अगर आपका कैमरा खराब है, हमारे पास सॉरी दूसरा नहीं है, कस्टमर नाराज हो गया और वो कंप्लेंट ऊपर तक जाएगी। लेकिन अगर रिप्लेस कर दिया गया तो उसके सेल्समैन के कंधे पे थपकी देके कह देंगे चलो ठीक है यार प्रोडक्ट वापस आ गई। देयर इज अ डिफरेंस। अब वो माइंडसेट चेंज हो जाता है थोड़ा सा दोनों केसेस में। दे डाइवर्ट मैनेजमेंट अटेंशन अवे फ्रॉम केयरफुल प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यानी कि अब क्योंकि इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, रीजंस इन्वेंट्री के हमने बड़े स्ट्रॉन्गली जस्टिफाई किए थे क्यों इन्वेंट्री रखना जरूरी है, उस हिसाब से क्योंकि अब इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है तो मैनेजमेंट का सप्लाई एंड आप कह सकते हैं सप्लाई चेन एंड सप्लाई चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर प्लानिंग और कंट्रोल के ऊपर से फोकस थोड़ा सा कम हो जाएगा। इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, हो जाएगा मैनेज यार, अचानक फ्लक्चुएशन आई डिमांड के अंदर तो भी मैनेज हो जाएगा, फायर आया स्ट्राइक आया तो भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन हमने आगे जाके मैंने वो बताया कि आपको मतलब मैं इस पॉइंट से उस तरीके से एग्री नहीं करता, लेकिन जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो दैट एक्चुअली इज अ फिलॉसफी जो बेसिकली इंतहाई केयरफुल प्लानिंग एंड कंट्रोल के साथ ही एग्जिस्ट कर सकती है। फिर हमने इन्वेंट्री की टाइप्स डिस्कस की कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, पाइपलाइन, स्पेकुलेटिव, रेगुलर, साइक्लिकल, सेफ्टी एंड ऑब्सोलीट। पाइपलाइन वो हैं जो रास्ते में हैं, स्पेकुलेटिव वो हैं जो आप बेसिकली इन एंटिसिपेशन ऑफ प्राइसेस में चेंजेस के हिसाब से आप उसको इन्वेंट्रीज वो परचेज कर लेते हैं। रेगुलर, साइक्लिकल, सीजनल और दो जो वैसे भी हम लोगों ने देखा था कि रेगुलर डिमांड, साइक्लिकल और सीजनल डिमांड ये वो डिमांड्स हैं जिनको एंटिसिपेट करना रादर ईजियर है, तो इनकी फिर इन्वेंट्रीज ही मैनेज करना रादर ईजियर है, इसलिए होती हैं कि आपकी ये वो जो रेगुलर डिमांड है उसके लिए। बाकी सारी थोड़ी डिफरेंट है, खासतौर पर आगे सेफ्टी, स्पेकुलेटिव भी डिफरेंट है, सेफ्टी भी डिफरेंट है। सेफ्टी इज द वन कि आप एक्स्ट्रा स्टॉक जो रखते हैं जस्ट इन केस कि जी आपकी डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना कर जाए। एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड एंड लीड टाइम अनसर्टेनिटीज, अगर अनसर्टेनिटीज डिमांड के बारे में या लीड टाइम के बारे में भी होती है तो इन दैट केस आप सेफ्टी इन्वेंट्रीज एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं। देन देयर आर ऑब्सोलीट एंड डेड स्टॉक, प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट होगी, एक्सपायर होगी, डैमेज होगी, तो दे वुड बी दोज इन्वेंट्रीज होते हैं। उसके बाद हमने डिमांड को डिस्कस किया कि नेचर ऑफ डिमांड, क्योंकि बिकॉज इन्वेंट्रीज आर केप्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिमांड। इसमें हमने परपेचुअल डिमांड एग्जिस्ट की जो बड़ी स्टैग्नेंट सी आप कह सकते हैं, कंसिस्टेंट सॉर्ट ऑफ डिमांड। सीजनल डिमांड वो हमने अगेन डिस्कस किया हुआ है, लंपी डिमांड हमने बहुत दफा डिस्कस किया हुआ है, रेगुलर डिमांड अगेन प्रेडिक्टेबल सीजनल की तरह ही सॉर्ट ऑफ थिंग। टर्मिनेटिंग डिमांड, डिमांड नॉट रेगुलर, ये मिस्टेक मेरा ये मतलब नहीं है अगर आप आई डोंट थिंक कि जी रेगुलर डिमांड है जस्ट लाइक सीजनल डिमांड, लेकिन रेगुलर डिमांड वो डिमांड है जो प्रोडक्ट की रेगुलरली एग्जिस्ट करती है और उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सीजनल उसको कहते हैं जो सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, राइट, कीप दैट इन योर माइंड। टर्मिनेटिंग डिमांड के जिसकी डिमांड फोर्सिबल फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है। डिराइव डिमांड का हम कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। फिर हमने इन्वेंट्रीज के ऊपर आगे, पुल इन्वेंट्री वो है जिसमें जो वेयर हाउसेज हैं दोज आर ट्रेडेड इंडिपेंडेंटली, उनको जो फोरकास्ट मिलते हैं उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेंट्रीज बताते हैं, आप उनकी इन्वेंट्रीज उसके हिसाब से करते हैं। ये वो केसेज हैं जहाँ पे नॉर्मली मोस्टली इन्वेंट्री कैरियंग कॉस्ट प्रोडक्शन कैरियंग कॉस्ट को आउटवे कर जाती हैं। अगर इन्वेंट्री एक्स्ट्रा रखी जाएगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, इस वजह से जो वेयर हाउसेज हैं वो प्रायोरिटी ले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमीज। और सेकेंडली नॉर्मली रिटेलर्स इसी आप कह सकते हैं कि पुल इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी को ही देख रहे होते हैं, उनको आप पुश नहीं कर सकते उनके ऊपर इन्वेंट्री, वो जब मांगेंगे आप वेयर हाउसेज को पुश कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर जो अपने वेयर हाउसेज मेंटेन करते हैं वो पुल इन्वेंट्री के बेस पे होते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं ऑर्डर करना शुरू कर दो। देन देयर आर पुश इन्वेंट्रीज एलोकेट्स स्टॉकिंग पॉइंट टू द प्रोडक्शन, कि आप एलोकेट्स प्रोडक्शन टू द स्टॉकिंग पॉइंट्स रादर।
आप बेसिकली प्रोड्यूस कर देते हैं कंसिडरिंग योर इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल या आप कह सकते हैं स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्म के लिए, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट से आउटवे कर जाता है। इसकी वजह से आप जो है वो पहले प्रोड्यूस कर देते हैं, फिर आप स्टॉकिंग लोकेशंस ढूंढते फिरते हैं, और आप बेसिकली जो उनकी फोरकास्टिंग है उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्रॉस द बोर्ड सारे वेयर हाउसेज के अंदर। जस्ट इन टाइम अटेम्प्ट्स टू सिंक्रोनाइज स्टॉक फ्लो सो एज टू जस्ट मीट डिमांड एज इट अकर्स एंड मिनिमाइज द नीड फॉर इन्वेंट्री। कम से कम इन्वेंट्री की जाए, जब जैसे जरूरत पड़े उसके हिसाब से बना दिया जाए, उस हिसाब से अवेलेबल की जाए रॉ मटेरियल को या प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से। ये पुश और पुल इन्वेंट्रीज के हमने वो फ्लोज आपके सामने रखे थे राइट साइड पे आपके, रादर मेरे इस हाथ की तरफ आपके मैंने अभी आज पहली दफा सोचा है कि आई डोंट नो, मेरे ख्याल में राइट साइड, माई राइट साइड पुल इन्वेंट्रीज में वेयर हाउसेस आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, रिप्लेनिश इन्वेंट्री विद ऑर्डर साइजेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच वेयर हाउस। फोरकास्ट उनकी अपनी, उसके हिसाब से Q1 Q2 Q3 वो ऑर्डर करें, उतना ही प्रोड्यूस करके उनको दे दिया जाएगा। पुश इन्वेंट्रीज एलोकेट सप्लाई टू ईच वेयर हाउस बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ ईच वेयर हाउस, कि उनके फोरकास्ट से एसोसिएटेड, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री पुश की जाएगी उनकी तरफ, उनके मांगने से पहले उनको रिप्लेनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इधर एग्जिस्ट करता है पुल इन्वेंट्रीज में। इसमें रिप्लेनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इस तरफ से एग्जिस्ट करता है कि हम पुश कर देते हैं, पहले से पहुंचा दी प्रोडक्ट, एक्सेस बन गई थी, ये लो थोड़ी फालतू रख लो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। Then there are supply driven inventories, extensive forecasting needed, all supply must be accepted and processed, inventories are controlled through demand, most important aspect। आप नॉर्मली एक्सेस सप्लाई कर देते हैं क्योंकि आपके ये लॉस सेल्स के कॉन्सेप्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, एक्सेस सप्लाई करते हैं, उसके बाद आप क्वांटिटी को, इन्वेंट्री को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू डिमांड, यानी कि आप सेल्स लगा के पैसे नीचे ला के आप इन्वेंट्रीज डिप्लीट कर देते हैं, निकाल देते हैं जितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप इकट्ठी करते हैं। अक्सर हमारे हर सीजन में टी शर्ट्स की सेल लगती है, गर्मियों के बाद, सर्दियों के बाद आपकी स्वेटर्स और इन चीज़ों की टी सेल लगती है, इसी तरह बच्चों के बड़ों के सब केसेस में यूं ही होता है, तो सेल शूज की सेल लग जाती है, एक्सेस बन जाता है, उसको सेल आउट कर देते हैं। देन एग्रीगेट कंट्रोल 80-20 प्रिंसिपल से लिंक है, परेटोज प्रिंसिपल, दैट इज बेसिकली जो आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आप क्लासिफाई कर देते हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, फिर उसके बाद बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी, तो उनके जो इन्वेंट्री प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से ही मैनेज किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम बिल्कुल, हमारे पर टाइम खत्म हो चुका है। हम लोग ये करेंगे कि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड डिस्कस, आप कह सकते हैं इन्वेंट्री ही मैनेजमेंट के ही टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखते हैं, बिकॉज वी हैव ऑप्शन बिटवीन 2 चैप्टर, जो शायद मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँ कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं इन द रिमेनिंग टाइम पीरियड जो हमारे पास है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।